Om Namah Shivaya. Good morning and good evening, my dear brother and sister of this world. Today I am very happy to say you that our one of the most effective and very humanitarian Sudhir Srivastav, one of our ambassador of the organization. He is staying here local and he is going to join with us. So today we'll enjoy his talking and his experience with Parampran Yoga. And please be with us, listen him, and we'll meditate together. This way we are raising the global consciousness of this entire universe. So many people are joining us, many ambassadors are joining us of our Parampran Yoga, and they all are exchanging their own views for raising the global consciousness, how we can bring positivity on this earth, how we can bring the peace on this earth. This way we can do this. And each one of you who is listening me, if they are interested to come on the show to raising the global consciousness, is this the best way. Recently we had so many beautiful guests on our show, just like a Sankari. Sankari was from the Bali and from Canada, from USA. Many ambassadors have joined us, and just we have shared our very light moment. The experience, what we know, experience what they had with us. So this was a fantastic moment for all of us to join. So just I am waiting for him receiving the request for this show. We all will do some meditation together also, and what is his opinion about the Parampran Yoga, what is his opinion regarding the humanity, the love life humanity, he is going to share with us. So Sangeeta ji, welcome. Abhishek, welcome. Welcome Shankari, very good to see you. Welcome Sanjeev ji, welcome. I welcome all of you who has joined this show because 9:30 is our everyday shows. Every day happen in the same time. Either we do live, either we do a watch party. So yes, everyone is here to join this show, to just experiencing a different divinity within themselves, sitting at home, just to watch and see this beautiful divine talk. In this talk, we exchange our thought. We receive some question regarding the session. I'm happy Sudhir ji has joined. I'm just inviting him on the screen. So, my dear world, my dear brother and sister of the world, please welcome him, and very soon he is going to join the scheme. Hope everyone is perfect and everyone is doing its own job. Om Namah Shivaya, Sudhir ji. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Guruji. Om Namah Shivaya. Welcome to this Parampran Yoga show. You are really great person. Welcome to this event. Welcome to this live session. You are being listened by the whole world. 127 country people they all are listening you. They are all are waiting for you to come on the screen. So welcome to this beautiful session. You are a fantastic ambassador of this organization and people are really looking forward to listen you. आपको जिस लैंग्वेज में भी बात करनी होगी, जैसे भी अपने विचार को रखने होंगे, प्लीज आप रखेंगे, क्योंकि ये आपका घर है, ये आपका सेशन है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके ये है, तो प्लीज आप अपने आप को इस पूरी दुनिया को आइडेंटिफाई कराएं, आप अपनी परिचय बताएं प्लीज. गुरुजी को चरणों में नमस्कार. मैं सुधीर श्रीवास्तव और आपके सानिध्य में जो कुछ भी सीखा हूँ, आपसे सीखा हूँ, और इस इंसानियत को जो विश्व को परिवार मानने के दिशा में आप एक कार्य कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर हम भी छोटे छोटे कार्य जो लाचार गरीब लोगों की मदद करना, इंसानियत को महत्व देना, उस पे चल रहे हैं. बस ये आपकी कृपा है गुरुजी. वेरी नाइस. आपके ऐसे इंसान को इस धरती पे बहुत सम्मान
की जरूरत है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। और आपके जैसे लोग इस धरती पे अगर बहुत सारे लोग हो जाएं तो ये हमारा धरती स्वर्ग हो जाएगा। आपके बारे में मैं एक छोटा सा इस एक स्टोरी पूरी धरती के लोग जो भी हमें देश विदेश में सुन रहे हैं और इसे रिपीटेडली सुनते रहेंगे, क्योंकि ये फेसबुक लाइव ऑलवेज हर समय स्टेबल रहता है, ये कई हजार बार देखा जाएगा, कई हजार व्यूअर्स होंगे इसके। तो मैं उन सबको आपके बारे में एक बहुत जो आपकी डिविनिटी है, जो आप में एक इंसानियत कूट कूट के भरी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सुधीर जी एक ऐसे इंसान है कि एक तो सारा दिन मानवता के लिए काम करते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। 10 साल पहले एक दुर्घटना में इनकी वाइफ की ब्रेन डिफेक्ट हो गई थी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। सुधीर जी ने अपना तन मन धन लगा करके उनको कई लाख, ऑलमोस्ट करोड़ों से ऊपर पैसे खर्च हुए, उन्होंने कैसे कैसे मैनेज किया और आज भी वो उनको सुरक्षित रख के अपने घर में रखे हैं। और वो उनके साथ उनका जन्मदिन, उनका सालगिरह और दोनों बच्चों को उन्होंने एकदम अपने माँ और बाप दोनों का प्यार देके आज एक बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, वो हंगरी जा रहा है बच्चा पढ़ने। एक बिटिया बेंगलोर में जॉब कर रही है जो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीने लेने वाली है। तो ये सारा चीज जो इनका मैं सूक्ष्म रूप से हर वक्त देखता रहता हूँ और ब्लेस करता रहता हूँ। बाबा शिव को हर समय इनके इनके लिए हर समय कहता हूँ, बाबा किसी की सुनो ना सुनो, इनकी जरूर सुनना, क्योंकि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा एक इंस्पिरेशनल का एक मैसेज इस पूरी दुनिया को दे रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत इनको आशीर्वाद देते हैं। और परम प्राण योग के पूरे परिवार, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पूरे ग्लोब में हो, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपको प्यार देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। और सिर्फ प्यार ही आशीर्वाद नहीं, सब लोग आपके लिए प्रे करते हैं, है ना। ये भगवान, जब हम लोग ध्यान साधना करते हैं, सारे योगी जब मिलके ध्यान साधना होती है, तो ध्यान साधना में प्रे में आप भी होते हैं कि प्रभु जल्दी से जल्दी और भी सुंदर और भी अच्छा ये किया जाए। तो परम प्राण योग से सुधीर बाबू, आपने अब तक क्या क्या जाना, क्या सीखा, परम प्राण योग को कैसे आप जानते हैं, आप अपनी अनुभव इस पूरी दुनिया को और इस पूरे ब्रह्मांड के ग्लोबल फैमिली को आप बताएं, सब लोग सुनने के लिए रेडी हैं आपको। सबसे पहले गुरुजी, आपने बताया 127 देश जुड़ा हुआ है, सब हमारे एम्बेसडर, हमारे कार्यकर्ता और भक्त जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में परम प्राणी योग में जुड़ा। और आपने जैसा कि पूछा कि क्या अनुभव करते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले आपसे मुलाकात हुई और मैं धीरे धीरे आपके बारे में जानने लगा। एक प्रोग्राम भी कराया आपने जहां मैं रहता हूं खुद, जहां 7,500 फ्लैट है सिप्रासन सिटी में। मैं आपको देख के बड़ा आश्चर्य हो गया। मतलब एक होता ना कि पगला जाना, कि अरे एक इंसान जो पूरी फैमिली को अहमियत नहीं देता आपने, और पूरा इंसानियत को जगाने एक राह पे चल दिया, पूरा परिवार को विश्व मानकर। और आप जो है स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाते हैं, आप खिलाते हैं, दिन रात उत्थान के बारे में सोचते हैं, कैसे इंसानियत डेवलप करे, कैसे लोग सीखे, कैसे लोग खुश रहे, कैसे मेडिटेशन से लोगों को एक पावर दी जाए। तो मुझे लगा कि इसमें जुड़ना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे आपके नजदीक गया और मैं आपसे धीरे धीरे सीखने लगा, जाने अनजाने, और मैंने सीखा। और धीरे धीरे मैं भी कुछ छोटे मोटे लोगों की मदद करना, लाचार गरीब की मदद करना। और मुझे लगा, आपसे मैंने एक चीज सीखा जो शायद आपको नहीं पता हो। मैंने आपसे सीखा कि पूरी वर्ल्ड अगर हम टूर करके आ जाए ना, तो हम खुश नहीं हो सकते, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। बट एक जरूरतमंद को अगर समय समय पे लाचार को मदद कर देती, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है गुरुजी। मैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज जो भी मेरे लाइफ में है, जो मैंने सीखा, और जो आप कह रहे हैं कि आप हमारी अच्छाई है, विशेषता बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी देने और आपसे मैंने सीखा। सब बाबा की कृपा है, आपकी संस्कार और आपके पूर्वजों का जो अंश
पूर्वजों की जो डीएनए और कहते हैं हार्मोन और ये सारी चीजें जो आप में ट्रांसफर हुई हैं, वही संस्कार आपके हर शब्द में झलक रहा है। आपके पूरे परिवार के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं, आपकी नानी के तरफ के, आपके फादर के तरफ के, इन सारे लोगों की जो बुजुर्गियत और उनका जो एक अंश आप में आया है, वो ये अंश आज इस दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है, चमकता हुआ एक स्वरूप है। इस स्वरूप में शिव हर वक्त आपके साथ हैं। हम लोग का ध्यान, हम लोग का आशीर्वाद, हम लोग का प्रे जो बिल्कुल तन मन धन से अपने आत्मा से हम लोग करते रहते हैं, उस पूरे स्वरूप में आपका केंद्र में रहते हैं और आपके और वाइफ की स्वास्थ्य के लिए, परिवार के अच्छापन के लिए हम लोग जरूर हर वक्त प्रार्थना करते रहते हैं। तो सुधीर बाबू, आप जरूर और कुछ बताएं कि आपकी जीवन में ये। हाँ। गुरुजी, गुरुजी आपको शायद याद नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, एक प्रोग्राम में मैं था आपके साथ और हाँ। आप शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, काफी लोग था और हाँ। आपने बताया था, वो आज भी मुझे याद है, हो सकता है आपको याद नहीं हो। आपने कहा था कि बच्चों को अगर संस्कार देना है तो हाँ। आपको हाँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ले जाना पड़ेगा। आप पैसे जितना मर्जी छोड़ दीजिए, इंसानियत के लिए उसे इंसान की राह पे चलना पड़ेगा। और मुझे इस बात का, मैंने उससे सीखा, जो आपने बताया था मेरे दिमाग में आ गया। और जो मिसेस की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था और हाँ। इस हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। देखिए, इस दुनिया में जैसा आप कहते हैं कि हर आदमी आया और जाएगा, इस दुनिया का विटनेस है हम एक विटनेस बन के हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा सामने आएगा, और जितना अच्छा करेंगे संतुष्टि मिलेगी। और आपसे मैंने सीखा कि पूरा वर्ल्ड को, एक विश्व को परिवार समझ के और उस पर कार्य किया जाए। आप दिन रात जो लगे रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में आप एक शांति, विश्व शांति की लहर फैला रहे हैं। सलम में जाके बच्चों खिला रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं, इंसानियत को समझ के लिए आपने इतना समर्पित कर दिया अपने आप को। मैंने देखा कि हमारे जैसे तुच्छ छोटे इंसान जो हैं, वो अपने परिवार, बीवी बच्चे, मॉल और गाड़ी में ही अपना समय निकाल लेते हैं, उसी में सोचते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। लेकिन आपने सब कुछ त्याग के एक विश्व को एक दिशा दिया, नया दिशा दिया। और मुझे यही सीखना था, और सीख मैं चाहता हूं कि आपके सानिध्य में मैं रहूं, और के लिए, परिवार के लिए मैं करूं। आपका बस आशीर्वाद चाहिए। आपके सानिध्य में मैं कुछ सीखता हूं और मैं कुछ करूं। वेरी नाइस। भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद दे, इसी तरह खूब आप बढ़ते रहें। यही परम प्राण योग के पूरे परिवार की तरफ से प्रार्थना में, हर वक्त मौन साधना में, ध्यान साधना में, हम लोग के कर्म साधना में आपकी चर्चा होती है और आप को केंद्र में रखा जाता है। तो आप हमारे एम्बेसडर हैं और पूरी दुनिया भी आपको सुन रही है। आप परम प्राण योग के कंट्रीब्यूटर हैं, लाइफ मेकर हैं, चेंज मेकर हैं, जो पूरी दुनिया में जो आज ग्लोबल कॉन्शसनेस, ग्लोबल माइंड के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से कलेक्टिव माइंड के अंदर पॉजिटिविटी के संचार को किस तरह से ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पूरे प्रकरण में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सराहनीय है। जाने अनजाने में आज की दुनिया में लोग, पहले एक मिथ कहा जाता था कि अच्छा काम करो, दाहिने हाथ से करो और बायां हाथ को पता ना चले। ये उस जमाने के लिए बहुत फिट था, आज के जमाने के लिए ये फिट नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था कि एक समाज होती थी, एक परिवार होता था, पूरा गांव अपना परिवार होता था, और बगल में चाचा है, मामा है, नाना है, घर में सब लोग किसी ना किसी तरह से एक रिश्ते से बंधे थे। कोई भी किसी को नाम लेके नहीं बुलाता था। कोई ताऊ जी हैं, कोई बाऊ जी हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है। तो इसीलिए समाज में अगर किसी की स्थिति है खराब, अगर प्रभु की किसी कहते हैं नॉन अलाइनमेंट के चलते या किसी दूसरे कारण
स्थिति नहीं है, वो कमा धमा नहीं पा रहा है, उसका जीवन ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस वक्त क्या होता था कि ये कहा जाता था कि भाई आप उसको मदद तो जरूर करें लेकिन बताएं ना। इसलिए नहीं बताएं कि और समाज में और जो लोग हैं उनको हीन भावना से देखेंगे, और जो वो समाज में रह रहा है उसे भी हीन भावना होगा कि भाई हम अभी ये स्थिति में है, हमको बता के इन्होंने समाज को बता दिया। लेकिन अब समाज रहा कहां? अब तो ये सोसाइटी ऐसी हो गई है, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर आकर के एक जगह सो कॉल्ड समाज में रहते हैं। अच्छा, हम लोग अगर कोई काम करें और उसे हम बताएं ना, या उसे हम इंस्पिरेशन के एक्टिविटी के लेवल पे समाज को ना बताएं, तो कैसे और तीसरा आदमी उस चीज से इन्फ्लुएंस होगा? ह्यूमन माइंड जो है वो ह्यूमन माइंड मंकी माइंड की तरह होता है। जैसे एक बंदर दूसरे बंदर को जो करते हुए देखता है वही वो करना शुरू करता है, ठीक मानव का जो दिमाग होता है, ह्यूमन माइंड जो होता है, वो भी कुछ अच्छा देखता है तभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, बुरा देखता है तो बुरा करने की कोशिश करता है। तो इस पूरी दुनिया में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा फैली हुई है, इसका कारण ही है कि मंकी माइंड जो ह्यूमन का है, जो देखता है वही फिर वो करना शुरू करता है। तो आज की दुनिया का ये नीड हो गया है कि अब पॉजिटिविटी को इतना हम प्रमोट करें, पॉजिटिविटी को हम इतना इनकरेज करें, पॉजिटिविटी को हम इतना पोस्ट करें, इतना शेयर करें कि आदमी जो देखता है फिर वो भी अपने स्तर पे वही चीज करना शुरू करता है। इस वजह से इस माध्यम से हम लोग कहते हैं स्प्रेडिंग द ह्यूमैनिटी, स्प्रेडिंग द लव लाइफ ह्यूमैनिटी इन दिस इंटायर यूनिवर्स। पूरे वर्ल्ड में जब हम लोग इस चीज को फैलाएंगे और इस चीज को बताएंगे, तो एक आम सा इंसान जो कभी कभी किसी के लिए करने को ना सोचा हो, उसे भी मन में अंदर आने लगता है चलो आज हम भी 1 किलो आटा बांट देते हैं, या चलो हम भी कुछ कर देते हैं। क्यों? हमने सुधीर जी को देखा, हमने गुरु जी को देखा, हमने उसको देखा, तो उनके अंदर भी आती हुई भावना को वो रोक नहीं पाते हैं। लेकिन भला किसका हो रहा है? भला तो उसी इंसान का हो रहा है जिसको सच में जरूरत थी और उसको सामान मिल जाता है। तो अब पहले जो मिथ थी कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता ना चले, अब ये मिथ इस वक्त के लिए, इस समय के लिए वो अब सही नहीं है। कई सारे ऐसे मिथ हैं जो पहले थे और आज के लिए वो लाइबल नहीं है, आज के लिए वो फिट नहीं बैठती है। पहले कहा जाता था जो सोया वो खोया, और आज अब साइंस कह रही है कि आप जितना सोएंगे उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। पहले कहा जाता था जो खेला वो बर्बाद हो गया, खेला कूदा, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब वो मिथ खत्म हो गई। वो मिथ खत्म हो गई कि जो आज खेलता कूदता है और एक्सेल करता है तो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। तो ये मिथ जो है हर युग में, हर क्षण, हर कहते हैं प्रहर में वो बदलता रहता है, युग के साथ मिथ बदलती रहती हैं। तो पहले की जो मिथ थी कि दाहिने से दो बाएं को ना पता चले, आज के युग में भी सत्य बैठता है, लेकिन वो वहां जहां आपका समाज है, जहां आप गांव में रह रहे हैं, जहां आप पूरे लोग एक कुनबे में रह रहे हैं, वहां इस तरह की बात होती है। लेकिन जहां आप शहर में रह रहे हैं, मेट्रो में रह रहे हैं, जहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि आदमी को एक अच्छा न्यूज सुनने को तरसना पड़ता है, एक अच्छी न्यूज उसके पास आती नहीं है, वैसे जगह कहते हैं जहां पत्थरों का समाज है, जहां ईंट और गारे का समाज है, वहां पे तो आपको इंस्पिरेशनल न्यूज को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जो और दूसरे लोग हैं वो फिर इस आपकी धारा में बहेंगे। तो आपका ये जो काम है, हम लोग जो साथ एक बहुत बड़ा जो मानवता के लिए काम हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग प्रभु शिवा से हर समय प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखें, सबको आशीर्वाद दें, सबको शक्ति दें, और इस तरह की शक्ति दें कि आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, इस दुनिया में शांति आ पाए, इस दुनिया में प्रभाव आ पाए। ये सारा चीज बहुत बड़ा एक स्वरूप हो रहा है। तो हम लोग जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, सुधीर बाबू, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड या ध्यान से रिलेटेड आपके पास अगर कोई प्रश्न हो या आपकी कोई जानकारी हो या कोई आपके पास कोई स्टोरी हो अच्छी, तो आप जरूर हमारे श्रोता को सुनाएं।
गुरुजी, सबसे पहले तो बहुत कुछ हमने सीखा। एक प्रोग्राम में आपने बताया था हम्म, कि आदमी सुन के सीखता है, देख के सीखता है और भुगत के सीखता है। और उस पे आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था, आज भी मुझे याद है। उसी उसी टॉपिक को आपने आगे बढ़ाया है, अच्छा लगा मुझे बड़ा। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आपने बड़ा उसको विस्तार में बताया था कि देखिए, किसी ने सुना कि वहां वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया। हम्म, सुन के सीखा। एक दिन हाँ, उसके सामने एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बताया साहब ये दारू पिया है, एक्सीडेंट हो गया। एक दिन वो खुद पी के और भुगत के सीखा। तो आप जो बता रहे हैं कि जब भी कोई आप काम करो, अच्छा, तो वो 10 आदमी देखे, 10 आदमी का मोटिवेशन मिलता है। और जरूर। कई बार जैसे मैंने आपके सानिध्य में कुछ सीखा, चाहे 0.5% ही सीखा, और उस राह पे चलने की कोशिश किया, देख के ही सीखा, आपके संपर्क में जाके ही सीखा। और हम्म, आप अकेले अपने आप को सिमट देते। इवन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में भगवान भी किसी कोने में आ जाएं तो उनको प्रचार करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं और हम्म, मैं अच्छा कुछ कर सकता हूं आपके लिए, आपका अच्छा दे सकता हूं, आपको आपको सत्कर्म कराने की प्रेरणा दे सकता हूं। मीन्स कि हम जो भी हैं, हम छोटा मोटा करते हैं, हम समाज को बताएं, समाज मोटिवेट होगा, उसकी लालसा जगेगी, इससे इच्छा जगेगी और खुद करने की कोशिश करेगा, तो किसका कल्याण होगा? विश्व का कल्याण होगा। हमने तो ये आपसे सीखा है। मैं एक दिन की बात बताऊं कि आप मेरे घर आए थे, हमने बुलाया था बहुत रिक्वेस्ट करके कि आप आइए, और आप आए थे। मेरे मैसेज को आपने देखा था और आपने कहा था, और प्यार से आप मुझे निकनेम से बुलाते हैं, सुधीर बाबू। और सुधीर बाबू, बाबू का मतलब ही होता है कि छोटा बच्चा, या आप इस तरह से समझ लीजिए कि किसी बूढ़ी औरत को जिसका शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, हम माता जी बोलते हैं तो कितना खुश होती है। कारण, ये आदर सूचक शब्द है। जो आदर सूचक शब्द आपने सुधीर बाबू बोला, मेरे जहन में बैठ गया है। मैं आपको इतना भक्त हो गया हूं, इतना नजदीक से देखता हूं कि अरे ये इंसान, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको विश्व कल्याण चाहिए। और आपके जैसे 7 लोग हो जाए ना, तो ये 7 अरब की जो अर्थ पे जो 700 करोड़ लोग हैं, विश्व का कल्याण होगा। गुरुजी जी, मैं आपको ये मैं सबको बताता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि जरा आप आ जाते, मैसेज को देख लेते। हमारे लिए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो संपत्ति है, जो भी हाँ, कहिए, हाँ, हाँ, जो भी हाँ, है, मतलब हाँ, मेरे लाइफ में जो चार्म है वो हमारी मैसेज ही है। हाँ, हाँ, बेशक वो बेड रिडन है, बच्चों को, अच्छा, बच्चे हमारे सीखते हैं हमसे। और यही हम्म, होता है हम्म, हम्म, कि वो पेरेंट्स से सीखते हैं। तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है कि बच्चा हमारा जो है अच्छे रास्ते पे जाएगा। देखिए, हम्म, हम्म, आपके पास ऑडी हो जाए और मार्सिडीज हो जाए, रोज उठ के वो कोर्ट जाए, जेल जाए, हम्म, इंसानियत हम्म, नहीं है। इंसानियत हाँ, ये है कि हाँ, हाँ, आपसे सीखे। तो आपने हम्म, कहा था कि आप सुधीर बाबू, आप निश्चिंत रहो, मैं घर जाऊंगा और रोज मैसेज किए वहीं से हीलिंग करूंगा। तो हाँ, मुझे लगा, तुम नया नया था, मैं 11 साल हम्म, पहले की बात है, उस समय घटना घटा था। तो मुझे लगा कि गुरु जी जो है कुछ ज्यादा बता गए। तो मैंने एक दोस्त से चर्चा किया। मैं आपको आज फ्रेंकली बता रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ 127 कंट्री के लोग हमारे वेस्टर्न में, अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग सुन रहे हैं। तो मैं उससे कहा कि यार ऐसा ऐसा गुरुजी कह रहे थे। तो उस आदमी ने, मतलब साधारण सा आदमी एक असाधारण बात बता सकता है, उसके दिमाग में आ सकता है बात, और वो सही भी हो सकता है, संभव भी हो सकता है। उसने कहा, अरे यार सुधीर, तुम समझ नहीं रहे हो। आप देखिए महाभारत और रामायण में कि लोग जो है, ऋषि मुनि, किसी को शराब देता था, शराब पड़ जाता था, किसी को आशीर्वाद देता था तो आशीर्वाद पड़ जाता था। तो हो सकता है ये पावर गुरु जी में हो। फिर मैं दिन आपके साथ बैठा था, आपके चरणों में बैठा था, काफी लोग बैठे थे, तो बात चल रही थी। तो आप हर तरह की बात कर लेते हैं, आप किसी को मोटिवेट कर देते हैं, आप उत्साहित कर देते हैं। आप कहते हैं कि किसी काम को करना और किसी काम को उत्साह पूर्वक करना, दोनों में अंतर है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर मैंने पूछा आपसे कि आपके पास बैठ के ये पावर जो महसूस होता है गुरुजी, वो क्या है, और आप कैसे हीलिंग करते हैं, और मेरी मिसेज को लगता है। तो शायद आपको याद नहीं होगा, माफी के साथ चाहता हूं, तो आपने एक बड़ा सा सरलता पूर्वक बात बताई थी। उसमें आपने कहा था कि मैं 40-45 साल का हूं,
बचपन से मेरा इंसानियत को बढ़ावा देने में इंटरेस्ट रहा, और मैं आज तक किसी को अपशब्द नहीं बोला, कोई द्वेष भावना नहीं रखी, किसी से घृणा नहीं किया, कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है, और विश्व कल्याण के बारे में सोचता हूँ। मैं आपको बताऊं, क्या गुरु जी को पावर यहीं से तो आता है, हम लोग नहीं समझ पाते। जो आदमी विश्व परिवार के बारे में सोचे, कल्याण के बारे में सोचे, और मैं आपको बताऊं, करने की पावर है ना। मैं तो आपको देखता हूँ, विश्व के सारे लोग आता है, आपसे मिलता है, आपके घर भी रुकता है, आप छोड़ने भी जाते हैं, मतलब आप वो, और इसीलिए मैं आपको हमेशा चरणों में नमस्कार करता हूँ। और ये सच्चाई है कि इंसान चाहे, पहले क्या होता था, ये जो आप हैं, मैं क्या बताऊं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को दिशा देना, बिना पढ़े लिखे लोगों को भी दिशा देना, और इंसानियत को विश्व आना, और उस पर काम करने के लिए बताना, मुझे लगता है कि आपने जो किया है, वो पावर कहाँ से आता है। और ये जो लोगों के दिन रात उठ के बच्चों के, गरीब बच्चों के बारे में सोचना, स्लम के बारे में सोचना, किसी को दिक्कत हो जाए उसकी मदद करना। कई बार तो आप मुझे फोन करते हैं कि बहुत कष्ट है, तो उसको फी नहीं दिया गया, तो उसकी किताबें खरीद के आइए, और जो आदेश होता है हम करते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये भगवान का भेजा हुआ दूत है आप। ये मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं आज ये समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, विश्व के लिए मैं आपके सानिध्य में और सीखूंगा और करूंगा जो हो सकता है। तो वाह 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 तो वाह, मेरा बहुत एक बहुत। और बात है, जो अभी जो कोरोना का माहौल था, तो हम लोगों ने बड़े लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू दिया, थोड़ा एडुकेट किया, तो उस पर काम भी किया, जरूरतमंदों को मास्क बांटा, चावल दाल आटा बांटा, खाने पीने पैसा। रोजा का समय उसमें रोजा का समय चल रहा था, कई ऐसे लोग मिले जिसके पास रोजा अफ्तारी के पैसे नहीं होते थे, हम लोगों ने जेब से वाले ऊपर वाला, जो हम भ्रम में रहते हैं ना कि हम परिवार पाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। ये तो आप ही का परिवार को भी पाल रहा है। ये चीजें जो आई, मतलब हमने, अच्छा, और कोरोना में हमने आपसे एक ही चीज सीखा, लगातार मैं सोशल डिस्टेंस, लेकिन आपने कहा इमोशनल डिस्टेंसिंग मत करना, सबसे जुड़े रहो, परिवार से, समाज से, विश्व से। उनको लगे मेरा कोई है, खड़ा है, मैंने मुसीबत में, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अनुभव करके हमें मदद करने आ जाए। आपसे हमने सीखा है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है, मैं, आपने मुझे 10 साल पहले परम योग का एम्बेसडर बनाया, हो सकता है कुछ भूल चूक हो गई हो, कहीं कमी रह गई हो, लेकिन हमेशा सुधार की गुजारिश। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, और आपके इंसानियत से, आपके अंदर बसे भगवान से, आपके रोम रोम में जो एक आप जेन्युइनिटी रिफ्लेक्ट होती है, वही इतना बड़ा कृपा आपके में एक अच्छी जाति के बच्चों को जॉब लगना और इंजीनियरिंग में होना, ये बहुत मुश्किल, जूझते हुए एक ऊंची जाति का बच्चा कर पा रहा है, तो ये साक्षात कृपा है, साक्षात बाबा सूक्ष्म रूप से कृपा है, क्योंकि
यू आर रिसीविंग, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ देते हैं या देने की कोशिश करते हैं अपने अस्तित्व के अंदर, ये भी बहुत बड़ी कृपा। और इस जागृति में सबसे बड़ा, इससे बहुत चीज एक और भी है कि उस आदमी को हम लोगों को धन्यवाद करना है जो सेवा को करने का मौका है। ये आपके पास सब भरा पड़ा है और आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको लोग ना मिले, आपको वैसे आदमी ना मिले जहां पे आप सच्ची सेवा जाके कर पाए, तो कितना लोग जहां भी जरूरतमंद है, लेकिन अगर प्रभु ही देने वाले के पास पहुंचता है और देने वाले को लेने वाले को एक दूसरे के पूरक है, भगवान भक्त के पूरक है, और के बिना इन दोनों का काम चलेगा नहीं। तो ये स्वरूप में कहते हैं मकसद जीवन पाने का, पाने की मनुष्यता और जीवन पाने का जो रियल उद्देश्य है, रियल मकसद, वो आत्म शांति, आत्म सीमा पे जीना। क्योंकि खुश रहने वाला आदमी 1,000 रुपए में बहुत खुश रह रहा है कि उसके भगवान ने उसको संतुष्टि की प्रॉपर्टी दी। 1,000 करोड़ का मालिक होने की प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो जिसको धरती का राजा हो जाता है, और जिसको संतुष्टि की प्रॉपर्टी नहीं भी कमा ले, वो हर समय फकीर होता है, वो हर समय गरीब होता है संतुष्टि आती है आपको, आप जोड़ने के बाद, जब आपकी अस्तित्व से आप स्वयं अपरूप बसा वो परम में आपके कण कण में, आपके एक एक रोम रोम में वो अपने आप को स्थापित कर देता है, और तो होना सूझ जाता है। और जैसे ही आप अपने अस्तित्व से प्यार, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में हर स्वरूप में अपना स्वरूप देखते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मांड कौन, दूसरा भी एक जैविक जैविक शरीर जो आपके आस रह रहा है, प्रकृति, एनिमल्स है, क्या होता है कि आप अपना दुख देखते हैं, और ये आपको एक छोटे से एडल्ट पे छोटा सा साइज, लेकिन जैसे ही हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस हमें अनंत बना देता है। और वो जैसे कि एक गिलास पानी को आप समंदर में फेंक दें, तो उस एक गिलास में रहने वाला पानी अपना अपने हायर अनंत में विलीन हो जाता है। और यही यही सुख है, यही आनंद की मेन कहते हैं। में लोग सच में आप बहुत चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके अंतरात्मा से जो भी आज बात आती है,
आप ही की बात तो मैं सीखा हूँ। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया हमारा सेशन। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की, फिर सुधीर बाबू अगर आप हमें सुन रहे हैं हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे।